how to get full marks, 100% marks in case studies. This is the very common question asked by every student of economics. So आज की क्लास में मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप इकोनॉमिक्स में केस स्टडी में पेपर 2 के अंदर, दिस इज़ AS पेपर 2 केस स्टडी, जिसमें आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं. ऑल्दो मार्क्स इसमें बहुत कम लेते हैं बच्चे. अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इसकी एवरेज बहुत लो होती है, लाइक 4-5 मार्क्स जनरली बच्चे ले रहे होते हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स. लेकिन इट डजंट मीन कि आप सिर्फ इतने ही मार्क्स ले सकते हैं. आपके पास अगर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप इफ़ यू आर वेल अवेयर कि हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस, देन keep in mind this is really simple to get even 20 out of 20 marks in case studies. So I will guide you in this lecture how to get it, and I'll provide you the complete answers to these questions as well. So first of all, I want all of you to stop the video and read the case study first. आप पहले इसको एक दफ़ा go through कर लीजिए. मैं आपको I'm showing you, you can stop the video and then you can read the content. राइट. सो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप इस कंटेंट को एक दफ़ा पढ़ लें. अगेन द मेथड इज़ यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन रीड द कंटेंट केयरफुली. राइट. सो लेट मी शो यू द एंटायर केस स्टडी हियर. ओके. So this is the table and table 1.1. You have to read this table carefully. This will really help you a lot to solve all of your answers, almost all of your answers. Okay, so I'll explain what does this table actually show. And start reading the case study. And before moving to the questions, I'll explain you this table, what is showing in this table, right? So the case study is ending here, and then we have the questions. Before showing you the questions, let me explain you what does the table in this case study show. So in the table you can see that there are key economic indicators of Nigerian economy, right? The first one is economic growth rate, percentage change in real GDP per year. You can see in 2016 GDP per capita or GDP per year increased 1.6%, then 0.8%, then 1.9%, 2.2%, minus 1.8%. So GDP is increasing in 2016 because the figure is positive. So 1.6% increase है इसके अंदर. 2017 में 0.8% increase है. Still when the rate of growth is positive, it shows के ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का रेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. 2018 में यू कैन सी दैट इट इज़ 1.9. मीन ऑल ऑफ दीज फिगर्स आर इन परसेंटेज, कीप इन माइंड. सो दिस इज़ 1.9%. अगेन द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, मीन्स जीडीपी इज़ इंक्रीजिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अकरिंग. इसमें भी आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी इज़ राइजिंग. 2020 के अंदर अगर आप देखें 1.8 माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आंसर है. इट मीन्स कि ग्रोथ अब इस टाइम पे डिक्लाइन हुई. आपका जीडीपी पिछले साल से कम हो गया. जीडीपी हैज़ डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. नेगेटिव ग्रोथ मीन्स जीडीपी इज फॉलिंग. Except 2020, in all other years, GDP is continuously rising. And now moving to another economic indicator, inflation rate, that is also shown in percentage. Inflation rates are also positive in all of these years from 2016 to 2020. It means कि inflation rate भी हमारे पास बढ़ रहा है. Inflation rate में भी कमी नहीं आ रही, decrease नहीं हो रहा. It is continuously increasing. However, the rate of increase is changing. जैसे suppose करें इसमें 15.7% increase था, now it increased by 16.5%. लेकिन it doesn't mean कि inflation rate कम हो गया. इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया, बट प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है. सो प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग, रादर inflation rate is also increasing, 15.7 and 16.5. inflation rate is increasing and definitely it shows price level is also increasing. अगले साल में जब हम जाते हैं तो rate of inflation is decreasing to 12.1%.
मीन्स कि अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया, इट डजेंट मीन कि आपकी प्राइसेस भी कम हो रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं बट बढ़ने का रेट कम हो रहा है, इसको डिसइन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं। अगेन 11.4% प्राइसेस में पॉजिटिव चेंज है, मीन प्राइसेस बढ़ी हैं, राइट। अगेन ये हमारे पास डिसइन्फ्लेशन है बट प्राइसेस बढ़ रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ती है बट प्राइस बढ़ने का रेट कम हो रहा होता है, कम रेट से, पहले साल से कम रेट से इंक्रीज होती है। 12.8%। अब हम दोबारा से देखें तो 2019 से 2020 तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ है, मींस कि प्राइस लेवल तो सारे सालों में बढ़ रहे 2016 से 2020 तक, लेकिन प्राइसेस बढ़ने का रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सो 2019 से 20 तक जब हम जा रहे हैं तो 11.4% से 12.8% पे, इसको हम रीफ्लेशन का नाम देते हैं। व्हेन प्राइस लेवल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट, इसको हम रीफ्लेशन कहते हैं। अगेन कीप इन माइंड सारे सालों में प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। एंड नाउ मूविंग टू अनदर इकोनॉमिक इंडिकेटर, दैट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस इज ऑल्सो शोइंग इन परसेंटेज, और जब जब ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं इट मीन्स के करंट अकाउंट इज़ इन सरप्लस रीजन, मीन्स के वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द कंट्री इज़ मोर देन द आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द कंट्री। जनरली एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को ही हम कंसिडर करते हैं, लेकिन और भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, करंट ट्रांसफर्स, इनकम फ्लोज, ये चार चीज़ें होती हैं जो करंट अकाउंट में आती हैं। लेकिन अभी हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न है कि इफ़ करंट अकाउंट इज़ पॉजिटिव इट मीन्स कि इट इज़ इन सरप्लस सिचुएशन, इट इज़ फेवरेबल सिचुएशन ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी जो स्टेट है दैट इज़ सरप्लस और फेवरेबल, और पॉजिटिव स्टेट भी इसे कहते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं 0.7 सरप्लस था पहले, फिर 2.8 सरप्लस है, फिर 1.3 सरप्लस है, मीन्स के सरप्लस में फ्लक्चुएशन आ रही है। लेकिन 2016, 17, 18 इन 3 सालों में हमें पॉजिटिव नज़र आया, मतलब सरप्लस में ही रहा है। शुरू में सरप्लस बढ़ा, फिर सरप्लस कम हो गया। अब हम 2019 में जब हम जाते हैं तो हमें नज़र आता है करंट अकाउंट नेगेटिव में मूव कर गया। 2020 में भी करंट अकाउंट नेगेटिव में चला गया, -3.8 डेफिसिट है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट है। और इसी तरह से 2020 के अंदर भी -3.77 है, तो ये भी नेगेटिव या अनफेवरेबल स्टेट के अंदर है। ओके, अब हम बजट की तरफ आ जाते हैं। बजट बैलेंस परसेंटेज में हमारे पास क्या है। अब इसको अगर देखें तो ये सारे सालों में इन ऑल ईयर्स इट इज़ नेगेटिव, मीन्स के सब आपका जो बैलेंस ऑफ बजट था, बजट बैलेंस था गवर्नमेंट का, वो सारे सालों में नेगेटिव हुआ। लेकिन इसका मतलब क्या, बजट होता है क्या गवर्नमेंट का? बजट का मतलब होता है समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है बजट बैलेंस इज इक्वल टू इनफ्लो ऑफ मनी फॉर द गवर्नमेंट, यानी इनकम ऑफ द गवर्नमेंट माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसका रिजल्ट जब नेगेटिव आ रहा होता है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की इनकम कम है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं। इसको हम डेफिसिट बजट बैलेंस भी बोलते हैं, मींस के आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी इनकम उतनी नहीं है। सो गवर्नमेंट के लिए ये डेफिसिट बजट होता है। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ आ जाते हैं। ये भी परसेंटेज में होता है, ज़ाहिर है रेट हमेशा परसेंटेज में होते हैं। 7%, 8.4%, सारे सालों में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉजिटिव है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेशक फ्लक्चुएट कर रहा हो, लेकिन रेट अगर पॉजिटिव है तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रही है, राइज होने का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है सिर्फ, है सारे सालों में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज ही। ठीक है बेटा, सो आई बिलीव कि यू गॉट द पॉइंट के ये हमें टेबल क्या शो कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस पार्ट। आई वांट यू टू स्टॉप द वीडियो एंड रीड these questions and think about the answers के what should be the answers to these questions, and then play the video again and listen to me what I'm saying. ओके, सो आप स्टॉप कर लें और इसको अच्छे से पढ़ लें, लेकिन मैं ज़ाहिर है इसको अभी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप इसको थोड़ा सा इसके बारे में माइंड मैप बना लें। जैसे मैंने बताया, मैं आपको इसके आंसर्स, कंप्लीट आंसर्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। सो पार्ट ए इज कंपेयर द गवर्नमेंट बजट बैलेंस ऑफ नाइजीरिया in 2016 with the government budget balance in 2020. So
2020 का और 2016 का बजट बैलेंस आपको कंपेयर करना है। तो अगर हम इफ़ वी गो बैक टू द केस स्टडी एंड द टेबल, यू कैन सी दैट इन 2016 सबसे पहले आपको बजट बैलेंस फाइंड करना है। ये बजट बैलेंस की फिगर्स हैं। 2016 में बजट बैलेंस इज डेफिसिट -3.9 एंड 2020 में अगर हम देखें तो -5.2 है। इट मीन्स कि दोनों सालों में डेफिसिट रहा है, लेकिन डेफिसिट इंक्रीज हुआ है इन 2020 एज कंपेयर टू 2016. So you can say that budget balance of the government in 2016 as well as 2020, in both year it is deficit, and deficit has increased in 2020 as compared to 2016. So this will be the perfect answer to get full marks, 2 out of 2 marks. And now moving to the other part, the second part of the question, there is a little like generic question. Using the PPC diagram, demonstrate the impact of rising level of unemployment on Nigerian economy. देखिए याद रखें PPC डायग्राम, सबसे पहले तो PPC डायग्राम क्विकली आप बना लेंगे ऐसे। इधर X गुड है हमारे पास, इधर Y गुड है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी लिख सकते हैं। PPC डायग्राम लुक्स लाइक दिस, राइट। इस तरह से जनरल जो नॉर्मल PPC डायग्राम हम बनाते हैं। अगर हम इस डायग्राम के अलॉन्ग प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वी आर एम्प्लॉइंग ऑल ऑफ द रिसोर्सेज। अब हमें शो क्या करना है, अब वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज राइजिंग। अनएम्प्लॉयमेंट राइज करे तो बच्चे क्या करते हैं गलती से, बच्चे इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं ग्राफ को। तो कीप इन माइंड शिफ्टिंग इज नॉट करेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से शिफ्ट नहीं आती, unemployment की वजह से there will be a point inside the PPC. So if we move from point A to B inside the PPC, this shows rise in unemployment in Nigerian economy. याद रखें, इसको explain करने की ज़रूरत नहीं है. You need not to explain this diagram, you have to just make this diagram, because examiner is saying that demonstrate with diagram, not explain it. You have to demonstrate mean you have to just show this diagram. आप इसको बनाएं और बस छोड़ दें। अच्छा बच्चों, आगे हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। कंसीडर द एक्सटेंट टू विच द रिमूवल ऑफ फ्यूल सब्सिडीज इन नाइजीरिया वुड लीड टू एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। अच्छा, अब ये इन्फ्लेशन हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न है, लेकिन अगर हम सब्सिडी की बात करें तो वो सिर्फ फ्यूल पे रिमूव हो रही है, ये माइक्रो का इशू है। अब यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो दोनों कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ग्राफ किस तरह का आप बनाएंगे, अगर आपको ग्राफ बना के एक्सप्लेन करना, डेफिनेटली ग्राफ बना के एक्सप्लेन करना, दैट इज़ लाइक मोर बेटर इफ़ यू मेक द डायग्राम एंड एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूल की सब्सिडी, फ्यूल पे सब्सिडी गवर्नमेंट अगर हटा दे, रिमूव कर दें, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। याद रखें सब्सिडी सप्लाई फैक्टर होता है, राइट। सो अगर फ्यूल पे सब्सिडी गवर्नमेंट ख़त्म करिए तो सप्लाई फ्यूल की कम हो जाएगी, सप्लाई कर्व फ्यूल का लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाएगा, एंड व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ़्ट देन इक्विलिब्रियम भी आपका अपवर्ड मूव कर जाएगा, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है, फ्यूल एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, याद रखें अगर एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपका एक्सपेंसिव हो रहा है, इट मीन्स के अब आपके इन्फ्लेशन को ये जाके हिट करेगा, कॉस्ट पर इन्फ्लेशन को कॉज करेगा। इसके लिए ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, एक्स पे हम क्वांटिटी शो करते हैं और वाई पे हमारे पास प्राइस होती है, एंड दिस इज़ डिमांड कर्व एंड दिस इज़ सप्लाई कर्व। डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे मीट कर जाते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ई लेबल कर देते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ क्यू, इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ पी। जैसे ही गवर्नमेंट सब्सिडी रिमूव करेगी, सब्सिडी रिमूवल का मतलब वही होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करने का मतलब होता है। लाइक गवर्नमेंट इम्पोज करे इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी रिमूव कर दे, हटा दे, दोनों केसेस में सप्लाई हमारा लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाता है। तो नया सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। अब S1 और इनिशियल डिमांड कर्व जहाँ पे मीट करें दैट इज़ पॉइंट E1, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि फ्यूल की क्वांटिटी कम हो गई, राइट, और लेकिन प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा, प्राइस बढ़ गई है, प्राइस P से P1 की तरफ अपवर्ड चली गई है। अब ये जो फ्यूल की प्राइस बढ़ी है
ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कॉज करेगी, ठीक है। सो प्राइसेस फ्यूल की बढ़ने से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है नाइजीरिया के अंदर। लेकिन इसकी एग्जामिनर ये भी कह रहा है कि कंसीडर द एक्सटेंट, तो अब इसमें आपको थोड़ा सा कमेंट ये भी करना होगा कि फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्यूल प्राइस ओनली इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स कि मे बी वो सस्ती हो रही हूँ, उनकी प्राइसेस कम हो रही हूँ, तो इन्फ्लेशन लाजमी नहीं है कि इंक्रीज हो। सो लाइक बट द मेन थिंग दैट वी कम टू नो इज़ के इन्फ्लेशन इससे बढ़ने के चांसेस होते हैं। नाउ मूविंग टू पार्ट डी, assess whether using supply side policy is the best way to diversify the Nigerian economy away from its dependence on oil and natural gas exports। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें तो हमें क्या कैसे आंसर करना है। असेस क्वेश्चन जब भी आ जाए, याद रखें यू हैव टू गिव असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, 2 and 3। ऑल ऑफ 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 क्या होता है, आपको नॉलेज देना होता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 एनालिसिस होता है, जिसमें आप वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, अगर ग्राफ बनता है तो ग्राफ बनाते हैं, अदरवाइज एग्जांपल्स और फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। देन व्हाट इज द लास्ट थिंग, यू हैव टू गिव इवैल्यूएशन एज वेल। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट एनी लिमिटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड देन यू हैव टू फाइनली कंक्लूडेड कि ओवरऑल पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा। सो स्टार्टिंग विद द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट, तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपको इकोनॉमिक्स की टर्म्स नज़र आ रही हैं, सबसे पहले आप उनको डिस्क्राइब कर दें। जैसे सप्लाई साइड पॉलिसी, ये हमारे पास दिस इज सप्लाई साइड पॉलिसी इज़ द इकोनॉमिक टर्म, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट सप्लाई साइड पॉलिसी इज़। एंड देन वी हैव अनदर इकोनॉमिक टर्म दैट इज़ डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज़ अनदर इकोनॉमिक टर्म दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। सो ये आपका नॉलेज का पार्ट आ जाएगा। देन आप बताएंगे कि हाउ सप्लाई साइड पॉलिसी कैन हेल्प टू डाइवर्सिफाई नाइजीरियन इकोनॉमी, और फिर व्हाई इट हैज़ सम लिमिटेशंस, एंड देन यू हैव टू सम अप विद द कंक्लूजन। सो डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच लाइक कंट्रीज प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ गुड्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन थिंग। डाइवर्सिफिकेशन याद रखें स्पेशलाइजेशन का ऑपोजिट होता है। Like specialization is when one country or one person or one industry or one like firm focuses on one thing, and diversification is when like we produce variety of products instead of just focusing on one thing। अच्छा जी, डाइवर्सिफिकेशन का आप बता देंगे, लेकिन यहाँ पे जो नाइजीरियन इकोनॉमी हमें पता चला कि ये ऑयल एंड नेचुरल गैस पे मेनली फोकस कर रही है, मीन स्पेशलाइज्ड है उसमें। सो अब इसको डाइवर्सिफाई करना है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के अलावा भी और चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। अच्छा जी, अब इसके लिए सप्लाई साइड पॉलिसी कैसे हेल्प करेगी। सप्लाई साइड पॉलिसी का बता देंगे, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट दैट मैनिपुलेट्स एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी सो दैट इट कैन अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, और वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। सप्लाई साइड पॉलिसी के टूल्स होते हैं लाइक प्रोविजन ऑफ सब्सिडी, रिमूवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, education and training of workers, capital expenditure on long term projects, deregulation of monopoly, and इसी तरह privatization भी एक एम होता है, एक इसका टूल होता है सप्लाई साइड पॉलिसी का। अब हमारे पास इतने ज़्यादा टूल्स आ गए हैं, अब ये जो टूल्स हैं सारे क्या हम एक्सप्लेन करेंगे 6 मार्क्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये सारे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, बट यू कैन पिक एनी 2 ऑफ देम। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट दे दे वर्कर्स को। Education and training helps people to get like different type of knowledge, expertise and trainings and education, so they can like enter into the new industries and they can diversify from oil and natural gas। जैसे सपोज करें डाइवर्सिफिकेशन हमने कहा था कि ज़्यादा काम करें, मोर देन वन टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रही हूँ, आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लोगों के पास पहले नहीं है तो अब दे दें, ताकि वो नई इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काम कर सकें, न्यू इंडस्ट्रीज़ में भी वो अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, स्किल्स हैं, उनको वो यूज़ कर सकें, तो इवेंचुअली वो डाइवर्सिफाई कर जाएंगे। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये बतानी होगी कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जब गवर्नमेंट देती है तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या हमेशा
इस चीज़ में हेल्प करती है. तो इट डिपेंड्स कि वर्कर्स कितना मोटिवेटेड है टू गेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. If workers are not like sufficiently motivated and driven to like get education and training and improve their skill to enter into the new industries and produce a variety of products instead of focusing on one thing, that is natural gas and oil. So if they are not interested to learn new thing, then this policy will be just a failure and will lead to budget deficit of the government. Government का पैसा तो लग जाएगा, लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होगा. इसी तरह से सेकंड जो पॉलिसी है वो हम बता सकते हैं, लेट्स से सब्सिडी का आप बता देंगे कि सब्सिडी किस तरह से हेल्प कर सकती है डाइवर्सिफाई करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडी का आप मीनिंग बताएंगे, द फाइनेंशियल सपोर्ट that is provided by the government so that investors can invest into new ventures to diversify in variety of products. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि अब अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, पर्पस क्या होगा कि न्यू investors and new entrepreneurs enter into the industry and they use that fund to produce and jump into the new industries so that they can set up new factories, new offices and produce different types of goods and services. अब इसका बेनिफिट तो ये नज़र आता है, लेकिन दूसरी तरफ सब्सिडी की भी मिस यूज़ होता है. लेकिन इसकी भी लिमिटेशन बतानी होगी आपको. लिमिटेशन बताते हुए आप बताएंगे कि इसका भी मिस यूज़ होता है, सब्सिडी भी लाइक गवर्नमेंट जब देती है तो वो उसका वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसलिए लाइक न्यू जो इन्वेस्टर्स हैं वो मे बी डाइवर्सिफाई करने की बजाय उस फंड्स का मिस यूज़ कर सकते हैं. ये आपने साथ में बता दिया कि हाउ वन टूल कैन अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफाइंग द नाइजीरियन इकोनॉमी, लेकिन साथ साथ उसकी लिमिटेशन भी हमने बता दी. एंड एट द एंड आपको कंक्लूड करना होगा कि सप्लाई साइड पॉलिसी इफ़ेक्टिव होती हैं या नहीं होती. वो आपकी मर्ज़ी है, आप फेवर में बात करना चाहें, अगेंस्ट बात करना चाहें, यू कैन डू दैट. लेकिन अगर आप फेवर में कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि डाइवर्सिफिकेशन you can say that in conclusion, diversification is possible through supply side policies, because these policies are long-term policies. They don't bring impact on an economy immediately, however they can bring impact on an economy in the long run. अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि मैं इनके perfect answers भी आपको दे दूंगा, तो you should watch the video till end ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं कि आंसर कैसे लिखना है और आपको फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे, 6 out of 6 कैसे मिलेंगे और 20 out of 20 कैसे मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर पार्ट ए की तरफ हम मूव करते हैं. डोंट स्किप दिस वीडियो. आई सजेस्ट कि आप वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको ये पूरा एक थॉरली पता चल जाए. Assess whether adjusting the collection of direct tax or indirect tax is likely to be more effective in increasing tax revenue collected by the Nigerian economy. Again, assess question है तो 3 assessment objectives देने होंगे. Assessment objective 1, 2 and 3, and you have to explain. First of all, assessment objective 1 में क्या explain करेंगे? You will pick economic terms given in this statement of question, then elaborate them, define them, give their examples. Suppose we have to explain what direct tax is. Direct tax हमारे पास economics की term है, indirect tax economics की term है. ये आपको बताने कि ये इनका क्या मीनिंग होता है. सो डायरेक्ट टैक्स इज़ बेसिकली द टैक्स दैट इज़ इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसेस, राइट. इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं दैट इज़ इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जनरल सेल्स टैक्स है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं. दीज आर द काइंड ऑफ टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. दे इंक्रीज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डायरेक्ट टैक्स आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को बढ़ा देते हैं. अब ये जो दो टैक्स की टाइप्स हैं, ये दीज आर लाइक 2 different टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट हेल्प द गवर्नमेंट टू गेट मोर टैक्स रेवेन्यू, राइट. इनका सोर्सेज क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. अब आप बताएंगे कि डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नाइजीरियन गवर्नमेंट की रेवेन्यू को. डायरेक्ट टैक्स का फ़ायदा, बेनिफिट ये होता है कि direct taxes are more certain because like people have to pay from their salaries, for example, business have to pay from their profit. So direct tax is properly documented because companies are registered under the government and they provide all types of records to the government as well. The number of employees working there and their
salaries, what are they getting from there. So वो सारा record उनके पास होता है. So when they have the complete record of the people working there, and they also record all of their costs and revenues and profits and losses and everything, then it is more certain for the government to get more revenue, because government knows the data about the people and the businesses. इसी तरह से इसकी सर्टेनिटी ज़्यादा होती है, और ये फेयरनेस को भी शो करता है. द पीपल हु अर्न मोर इनकम दे पे मोर टैक्सेस, द पीपल हु अर्न लेस इनकम दे पे लेस टैक्सेस. द इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. इनडायरेक्ट टैक्स की बेस बहुत बड़ी होती है, मीन कि everyone comes under the tax bracket whenever government imposes it on goods and services. So everyone, irrespective of the financial status, whether he is rich, whether he is poor, whether he is adult, whether he is child, whether he is male or female, everyone has to pay tax. जब आप जाते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो सेलर आपको नहीं देखता कि आप कौन है, आपको वो टैक्स जो प्रोडक्ट की प्राइस में शामिल है वो ऐड कर देगा. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बेस बहुत बड़ी होती है, इसलिए मोर टैक्स रेवेन्यू कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एवरीवन. लेकिन ये अनफेयर होते हैं, अनफेयर इन अ वे कि अमीर को भी उतना पे करना है, रिच एंड पुअर ऑल ऑफ देम हैव टू पे द सेम अमाउंट. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू परचेज अ प्रोडक्ट वर्थ 100 रुपीज़ एंड इफ टैक्स इज $17 रुपीज़, तो इट मीन्स कि 17 रुपीज़ अमीर भी देगा, गरीब भी देगा. That 17 rupees will be higher proportion of the income of the poor, while it is the lesser proportion of the income of the rich. So ये unfair इसलिए consider होता है क्योंकि rich pay less proportion of their income and poor pay greater proportion of their income. So इसलिए इसको हम unfair नाम देते हैं. दूसरी तरफ अगर हम डायरेक्ट टैक्स को देखें तो उसकी भी लिमिटेशन है कि इसमें टैक्स इवेजन्स के चांसेस होते हैं. समटाइम्स पीपल डोंट डिक्लेयर देयर इनकम, they're not registered with the government, so whatever they earn they evade taxes and avoid taxes as well. टैक्स चोरी करना इसमें आसान होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स चोरी के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज व्हेन यू परचेज द प्रोडक्ट यू हैव टू पे इट. एंड पे आप कंक्लूजन अगर देना चाहेंगे तो डायरेक्ट टैक्स मेन सोर्स होता है इनकम का, एंड इफ इट डजंट डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम वर्क देन it is a good kind of tax, and it gives more certainty to the government to get more tax revenue. अच्छा, जिस तरह conclude कर लेंगे, लेकिन what should be the perfect answers to get 100% marks, 20 out of 20 in this case study? You can see the suggested answers that are written here, and you have to stop the video and read all of these answers. आप पहले जो questions थे उनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, एंड देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज आंसर्स, और इनको प्लीज़ पढ़ लीजिए. ठीक है. सो आई कीप शोइंग यू द आंसर्स. यू कैन स्टॉप द वीडियो व्हेन यू नीड टू लाइक रीड द आंसर एंड देन मूव अहेड. ओके, so this is the graph that you have to incorporate here. And now moving to the next part, that is part D. And yeah, diversification related question. Read it thoroughly, and if you wish you can make the your notes as well. And then we have part E here, and this is the last part. You can read it thoroughly, and if you have any issue still in understanding the concept, then you can get back to me, and you can write in the comment. If you need PDF of this, then send me the message on WhatsApp so that I can send it to you. So you can find a WhatsApp number in this video somewhere, right? So see you inshallah with the next video soon. Allah Hafiz.